Okay, so I'm assuming that we are all fresh. So I'm going to begin fresh with the article and the fresh curriculum of the physics. So that's the first lecture for it. So start karte hain, first lecture. When we talk about physics, so in short, physics is a term which is coming from a term physicia. और physicia का मतलब होता है nature. So the physics is all about learning from the nature and of course उसकी adaptation. नेचर में बहुत सारी चीजें हैं समझने को देखने को द ब्यूटीफुल रेनबो और रेनड्रॉप्स और वी हैव थंडरस्टॉर्म्स टेकिंग प्लेस सुनामीज कमिंग और earthquakes coming tidal motion so many things are there in the nature even the beautiful colors of a butterfly are all the nature and there is an element of physics in all of them. Thunderstorms for example is like a spark created in the sky is similar to what we use as a spark in the engines. It is also similar to what we use as a spark in a lighter. And it's also similar to the welding works taken in a auto mechanic shop. इसका मतलब हम फिजिक्स में क्या करते हैं पहले नेचर से कुछ सीखते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं. Now, I have some images behind me, moving images, animations है जो मेरे पीछे एक एक एनिमेशन को देखते हैं कि एनिमेशंस क्या हैं. So if I look at the first animation over there, this is about a car, not just a car, it's a turning car. Now turning car, so how does a car turn? So of course, sir, that is by steering. Can I imagine a car without a steering? Of course no, मैं तो नहीं कर सकता. So which means that the steering is an essential part of the car. For what purpose? It is for changing the direction. So this animation is basically explaining us that there is a change in the direction. Look at the second animation. It is about a rocket getting fired. कहाँ जा रहा? Is it going towards the moon? Is it going towards the Mars? Definitely ऐसा तो नहीं होगा कि randomly भेज दिया है. Because there will be a lot of economics based on it. तो यहाँ तो Mars को जा रहा होगा, या तो moon को जा रहा होगा, या कहीं और जा रहा होगा. So there will be a direction of it. So both these animations are telling that the direction is essential. But as I look at a third, this is a simple clock. The clock gives us what? Time. Let's say for now, the lecture is getting started at 2:30, it is going to finish at 3:30. तो अब इसके लिए मुझको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं. Definitely there is a direction in the clock. It's a clockwise motion. But I'm not interested in the direction. मुझे सिर्फ value चाहिए. तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. As in the fourth example, when I have a mercury rising and falling, so am I interested in the direction of it? No. I am just interested in the value. कि 99 डिग्री से कम है मेरा body temperature, so I'm safe. 99 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, oh, so then 99 डिग्री से Fahrenheit से ऊपर है, so I'm in some risk. इसका मतलब मुझे सिर्फ value से मतलब है. So the point is, दो diagrams, दो animations, but for the directions, and two are just for the values. And that creates the article in the physics, जिसको हम बोलते हैं scalars and vectors. So that is the core content of the today's session. I'm going to introduce to ourselves the vectors and scalars. So सबसे पहले देखते हैं कि हमारे learning targets क्या हैं आज के. So what I am going to try to cover up in the session will be the physical quantities and the nature of the physical quantities. या तो वो scalar है या तो वो vector है. And I will be discussing about the resultant forces through the law of rectangles. तो यहाँ तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे. That will be the learning targets for the today's session. इसके बाद से next slide से you will be making notes simultaneously. साथ में आप notes बनाएंगे इसी article के इस slide के बाद से. So I will be giving you time for making up the notes. So I hopefully everyone is having a copy in the front with a pen in hand. So I'm going to start up. I'm going to start up the idea with a term physical quantities. So that's a physical quantity. What is a quantity? Quantity का basic मतलब होता है जिसको हम measure कर सकें, जिसकी measurement possible हो. So the quantities are something which are supposed to be measurable, जिनको हम नाप सकते हैं. How do we measure? We measure using a physical instrument, like we measure the time using a clock. So anything which can be measured and it is related to physics, मतलब जैसे मैं कोई terms बोलूं,
मोलारिटी, नॉर्मलिटी। सो आप सुन के ही बोलोगे सर ये फिजिक्स नहीं है, एंड दिस इज केमिस्ट्री। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर मैंने बोला सेल, साइटोप्लाज्म, माइटोसिस, मियोसिस, ओ सर ये फिजिक्स नहीं है, दिस इज बायोलॉजी। ओके, so then what is physics? Sir, you talk about force, velocity, acceleration, power, energy, intensity, electric field, magnetic field. Yes sir, this is physics. तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको सुनते ही समझ में आ जाता है we are into physics. Such terms which helps us in understanding the physics, और जो measurable हैं, ऐसी particular terms को हम बोलते हैं physical quantities. So what is the definition part of it? So that's the definition part of it, which is measurable. Of course, measure कौन करेगा? A physical instrument. It can be measured or it can be derived. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मास को मेजर करते हैं वेइंग स्केल से, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो एक्सेलेरोमीटर से जो हमारी गाड़ियों में होता है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट फोर्स. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स को नापने के लिए कोई डायरेक्टली आपके पास में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फोर्स को क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो, जबकि मास को क्या करते हो? मेजर करते हो. एक्सेलरेशन को क्या करते हो? मेजर करते हो. सो देयर आर सर्टेन टर्म्स which can be measured directly and there are certain terms which have to be calculated. So जो भी हो, force, mass and acceleration तीनों हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. सबके पास एक वैल्यू होती है. वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल I say 10 10 10, it does not make any difference over here, तो तीनों सेम है. But the moment I write 10 Newton, 10 kilogram, 10 second, it makes sense. So 10 Newton means force, 10 kilogram means mass, 10 second means time. So it makes a sense. कैसे sense आई? When I write units according to it. So that's the definition part of it, जिसको हम measure कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जिसकी कोई वैल्यू हो और साथ में यूनिट हो, then it becomes a physical quantity. Now I have written this in points, and that's always a better way of remembering and writing. तो इसी तरीके से हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी हमेशा पॉइंट वाइज चीजें लिखेंगे. You must note down, take the notes for it. So what is a physical quantity? Measurable, having a unit, having a value. Having a value. Value मतलब 10, 5, 6, these are the values. And these are what? Units. That makes it as a physical quantity. The second half of the board is dealing with classification. कि physical quantity कौन-कौन सी होती है? So दो parts में लिखा है, fundamental and derived. So first of all, of course, हम basic बात करेंगे, fundamental बात करेंगे. So when I'm talking about fundamental, fundamental का मतलब होता है basic. Very basic मतलब क्या? जैसे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स कैसे बनता है? हम बोलेंगे इंग्लिश के तरीके से बात करते हैं. So PHYSICS. So what are PHYSICS? These are alphabets in English language. And what are alphabets in English language? Basics of English. आपको उसके कॉम्बिनेशन से कोई भी वर्ड बना सकते हैं. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होंगे सारे बना सकते हैं अगर आपको अल्फाबेट्स आते. So what are those alphabets? 26. They are the basics of the English language. In the same mannerism, फिजिक्स में भी फिजिसिस्ट ने सोचा कुछ ऐसा बेसिक बनाया जाए जिसके कॉम्बिनेशन से आप सब कुछ बना सकते. भाई इंग्लिश में तो ऐसे 26 हैं, फिजिक्स में they are only 7. And those 7 are known as fundamental physical quantities. तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. For example, when I'm writing force, so the force is equal to mass into acceleration. तो मैंने क्या करा? फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिया फॉर्मूले से, फिजिकल फॉर्मूले से. फॉर एग्जांपल, I have velocity. So how do I write velocity? So velocity is equal to displacement upon time. तो मैंने क्या करा? मैंने फिर से फॉर्मूला लिख लिया है. मैंने फिर से वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया. इसका मतलब ये बेसिक नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि आप उनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसका मतलब जिस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं वो बेसिक नहीं हो सकता. सो व्हाट्स द पॉइंट इन द फंडामेंटल? द फंडामेंटल इज द फिजिकल क्वांटिटीज. PQ मींस द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. उनसे सिंपल कुछ है ही नहीं, तो उनको फर्दर सिंप्लीफाई करा ही नहीं जा सकता.
सो दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, मतलब उनको फर्दर ब्रेक ही नहीं कर सकते। अब ए बी सी डी लेटर्स को थोड़ी ब्रेक कर सकते हैं, वो तो बेसिक है। तो जैसे मास है, मास को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, मास से सिंपलर कुछ है ही नहीं। लेंथ है, लेंथ को ब्रेक नहीं कर सकते, टाइम को ब्रेक नहीं कर सकते, दे आर व्हाट, द फंडामेंटल्स। फर्दर second point, what's the second point? The second point is they are independent of each other, independent of each other, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई पूछेगा सर आपका मास क्या है, तो मैं साथ में अपनी लेंथ थोड़ी बताऊंगा, हाइट थोड़ी बताऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर कितना स्विमिंग हुआ है, तो मैं साथ में अपना मास थोड़ी बताऊंगा, ये साथ में अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ी बताने लगूंगा। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन पूछे वही बताऊंगा, क्योंकि मास जब पूछा है तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। ऐसे नहीं कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो रिलेटेड क्वांटिटी, दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सो ऑल द सेवन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून, they all are independent of each other, so that's the definition of the fundamental quantities। और डिराइव का मतलब क्या है, डिराइव मतलब जो भी इनसे डिराइव हो सके, मतलब जिसका फिजिकल फॉर्मूला हो, जैसे प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, तो जिसका भी फिजिकल फॉर्मूला बन पा रहा है वो सारे के सारे क्या डिराइव, क्योंकि उनको हमने फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनाया है। सो डिराइव की डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे, हमने फंडामेंटल की लिख ली है, and this is I expect you to note it down, और जैसे नोट डाउन कर लोगे प्लीज गिव्स मी अ थम्स अप, और यू कैन टेल मी कि हमने नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो काइंडली नोट डाउन एंड लेट मी नो इफ यू हैव नोटेड कंप्लीटली। We have physical quantities as fundamental and derived. Fundamentals are only 7 in number. They are only 7 in number. So okay, so I've got some thumbs up. So I feel we are good to go, and moving towards the next slide. Right, anytime you are having a doubt, you can ask me. Right, anytime you are having a doubt, you can ask me. Okay, so this is the next slide, and what I am able to see over there, I am able to see over there some instruments. There are some instruments. The first instrument is a weighing scale. किस काम आ रहा है? This is used for measurement of the mass, and the mass is my first fundamental physical quantity. The second one is a device. What is that? That's a meter scale. What is a meter scale used for? That's for the measurement of length. And hence, the second fundamental physical quantity is what? The length. The third, oh, ye to pehchan liya. That's a clock. And what is clock used for? The measurement of the time. So these are my three first fundamental physical quantities. एक pause लेते हैं, एक छोटा सा pause लेते हैं, and we write them together. We write them together, mass, length and time. तो अगर हम इनको साथ में लिख रहे हैं, so that gives us an opening in physics. एक branch of physics open होती है, उस branch को हम बोलते हैं mechanics. Mechanics का सीधा साधा आसान सा मतलब क्या होता है? Study of the motion of a particle. उसको mechanics बोला जाता है। तो mechanics को study करने के लिए आपको सिर्फ इन तीनों चीजों की जरूरत है, मास, लेंथ और टाइम की। आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारे टर्म्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, एनर्जी, लेकिन ये जितनी भी टर्म्स मैंने बोली ये सारी की सारी सिर्फ इन तीनों पर डिपेंड करती है। They depend entirely on mass, length and time, and therefore mass, length and time are the basics, fundamentals for mechanics. जीवन में मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोशन इज एसेंशियल, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग अ कार, सो कार के अंदर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पीडोमीटर है, एक्सेलरोमीटर है, ओडोमीटर है, कार की स्पीड है, कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कार में एक्सेलरेशन है, वेरी फाइन, मैकेनिक्स है भर के। लेकिन फिर एक दिन मुझे गर्मी लगी, तो मैंने क्या करा, मैंने एसी ऑन करा, और विंटर्स आके मुझे ठंड लगने लगी, तो मैंने क्या करा, मैंने हीटर ऑन करा। इन शॉर्ट मैंने क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करा। तो क्या करा मैंने टेम्परेचर को कंट्रोल करा, एंड देयरफॉर दिस इज माय फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज टेम्परेचर। एंड व्हाई डू आई स्टडी द टेम्परेचर? तो टेम्परेचर मैं इसलिए स्टडी करता हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स को पढ़ना है जिसको बोला जाता है
heat and thermodynamics. That's the second branch of the physics. उसके लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है that is temperature. अब क्या हुआ, मैं गाड़ी में कंफर्टेबल तो था, टेम्परेचर भी कंट्रोल हो गया था, पर मैं बोर हो रहा था, सो आई वांटेड टू लिसन टू सम सॉन्ग्स. सो मैंने क्या करा, आई कनेक्टेड आइदर एप्पल प्ले और द एंड्रॉइड प्ले इन माय कार. अब मैंने कार में कनेक्ट करा तो कार के अंदर क्या मूव करने लगा, देयर वाज करंट इन द सर्किट्स एंड देयरफॉर आई रिक्वायर द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी. और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दैट्स एन एमीटर. एंड व्हाट्स एन एमीटर यूज्ड फॉर, it is used for the measurement of the current, and so the current is my fifth fundamental physical quantity. और ये मुझे फिजिक्स में किस ब्रांच से रिलेट करता है, the branch in physics, ये आपको पता है, that's electromagnetism. अभी आपको क्यों पता है, because this is what you have read in 10th. The electricity and the magnetism combined term is known as what, electromagnetism. हमारे घर में इंडक्शन कुकवेयर्स होते हैं, हमारे घर में मोटर्स होते हैं, डायनामोस होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स. ऑल दीज डिवाइसेस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस. हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फीचर होता है, मैग्नेटिज्म भी होता है. इसलिए एक कॉमन टर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको स्प्लिट करके पढ़ा जाता है. ओके, एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट 6. रात हो गई, सड़क पे, रोड पे कुछ नहीं दिख रहा था, सो मैंने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी. या मुझे अच्छा मूड चाहिए था तो मैंने अपनी गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग ऑन कर दी. सो वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच, जो कि 10 से पढ़ कर आए हो, क्या, लाइट. सो लाइट को नापने के लिए कुछ टर्म होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा. सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज फोटोमीटर. अ फोटोमीटर, व्हाट डज अ फोटोमीटर डू? मीटर का मतलब क्या होता है, measurement. Photo matlab light. So the instrument measures the intensity of the light. So the sixth physical quantity, fundamental, is known as luminous intensity. Luminous intensity means intensity of the light, the intensity of brightness. एक 10 वॉट का बल्ब है, एक 40 वॉट का बल्ब है. So the 40 watt bulb is going to give me more lumens, more brightness. तो उसकी कितनी ताकत है, कितनी इंटेंसिटी है, दैट इज फिगरिंग इन दिस टर्म लुमिनस इंटेंसिटी. कौन से इंस्ट्रूमेंट नापेगा, फोटोमीटर. कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स की ब्रांच हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज ऑप्टिक्स. व्हाट इज ऑप्टिक्स? इज द स्टडी ऑफ लाइट. सो मैंने क्या करा है, 6 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी है और 4 ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करी है फिजिक्स की. एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, that while you are studying in the +1, तो आपका 80% syllabus is for mechanics and the remaining 20% is heat and thermodynamics. That's where your +1 is going to end. And then in the +2 you are going to study the next part, that is going to be the electromagnetism and optics. So these are the main 4 branches of the physics: mechanics, heat and thermodynamics, electromagnetism and optics. It can be explained by 6 fundamental physical quantities. So हमने तो बोला था 7 है, and there is a 7th image also over there. But इसको देख के फीलिंग ही नहीं आ रही है कि ये फिजिक्स है. आप भी एग्री करोगे, सर ये तो केमिस्ट्री, ये तो फिजिक्स लगी नहीं रही है, ऐसा तो केमिस्ट्री के लैब्स में होता है. बिल्कुल एग्रीड है. तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, गलती से नहीं आ गई, गलती से नहीं आएगी. सो क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन, फिजिक्स के रास्ते केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं. For example, there is a chapter in physics thermodynamics. केमिस्ट्री में होती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. फिजिक्स में आर्टिकल है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स. केमिस्ट्री में भी है एटॉमिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो कहीं ना कहीं रास्ते मिलते हैं. तो हमने एक टर्म ऐसी बनाई है जो केमिस्ट्री से है लेकिन फिजिक्स में यूज होती है. तो ऐसी कौन सी टर्म है जो केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री में आती है और फिजिक्स में इस टर्म को हम नाम देते हैं, केमिस्ट्री में भी है, that is known as amount of substance. It's amount of substance. अब सुनने में amount of substance क्या लगता है, सो 5 किलो का सब्सटेंस है, 2 किलो का सब्सटेंस है. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं. मास अलग चीज है, ये अलग चीज है.
तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? मतलब सुनने में तो वही लग रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब सॉलिड्स के लिए मोस्टली नहीं आता, क्योंकि सॉलिड्स में चीजें इकट्ठी होती हैं तो उनको हम सीधा वे कर लेते हैं, सीधा मास ले लेते हैं। पर अगर आपको किसी गैस का मास निकालना है तो उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो उसका मास वेरीफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स थे। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है द काउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मेक अप द सब्सटेंस। तो गैसेस में ये बिल्कुल फिट है, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, रैंडम इधर उधर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कंटेनर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको काउंट करना पड़ता है, और फिर उससे बताते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस है। तो वहां हम इस पर्टिकुलर टर्म को यूज करते हैं। And according to chemistry, that is known as what? Mole concept. So this is measured in what? Moles. एक और बात, इसको नापने के लिए कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स के टर्म ही नहीं है। बाकी सबके लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए नहीं है। So that winds up the topic of the fundamental physical quantities. How many of them are there? 7. Mass, length, time for the mechanics, temperature for thermodynamics, then current for electromagnetism, and luminous intensity for optics, and the 7th in relation with chemistry, which is known as the amount of substance. So can you finish down the noting such that we can move forward? Only 7 fundamental. इसके अलावा जितनी भी टर्म्स है, velocity, acceleration, force, pressure, stress, elasticity, electric field, magnetic field, electric flux, so many terms, जितनी भी terms आप सुनोगे उन सबको बोलते हैं derived। तो उसकी तो लिस्ट एंडलेस है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नंबर ऑफ वर्ड्स कीप ऑन एडिंग, उसी तरीके से नई नई फिजिकल क्वांटिटीज बनती रहती हैं। कुछ तो ऐसी टर्म्स है जो आपने जीवन में कभी सुनी ही नहीं, but as you are going to walk through into 11th and 12th, you will be understanding and learning many such new terms जो कि विकिपीडिया में या ब्रिटानिका में मिलती हैं। Right? So let's move forward. I feel सबने नोट कर लिया. Everyone has noted this down. All the 7 physical quantities over there. All right. Right. Okay. So I am moving further. You can anytime tell me अगर आपको कुछ मिस हो जाता है, so I can go back to the slide. So moving to the next. So what is the new thing? We new thing of classification. अभी हमने क्या बोला? Physical quantity या तो fundamental है या तो derived है, and nothing new. So there is something new. What is the new? Scalars and vectors. तो कुछ physical quantity scalars होती हैं, कुछ vectors होती हैं। तो पहले तो देखते हैं कि दोनों के definition में क्या फर्क है। So let's move on to the definition part of them. सबसे पहले scalars की बात करते हैं। अगर मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं, I want some thrill, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को हाई करूंगा। I will be moving on a empty road, और मैं अपनी गाड़ी की स्पीड हाई करूंगा। अब वो empty road किधर जा रही है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, I have a good road from here to जलंधर, let's say। अब मैं जलंधर की तरफ जा रहा हूँ या जलंधर से वापस आ रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? If I want a thrill, मुझे तो स्पीड से मतलब है कि मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर है। So I just want that particular thrill. So मेरी गाड़ी में डिवाइस है वो बताने के लिए कि यस इतनी स्पीड है मेरी गाड़ी की। उस डिवाइस का नाम क्या है? स्पीडोमीटर। That speedometer can tell me the value of the speed. वो स्पीड की वैल्यू तो बता सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि मेरी गाड़ी जलंधर जा रही है, चंडीगढ़ जा रही है, पटियाला जा रही है, नहीं बता सकता। It cannot tell me. इसका मतलब ये जो डिवाइस है वो क्या है? वो सिर्फ वैल्यू जानती है, डायरेक्शन जानती ही नहीं है। Hence it is known as a scalar device. It can give me only the value. Value को magnitude भी बोलते हैं, value या फिर magnitude. So what is a scalar quantity? A scalar quantity का मतलब है जिसके अंदर हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. We are only interested in the value part of it. So a scalar is a quantity that is fully described only by magnitude, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बड़ी सारी क्वांटिटीज होती है, जैसे मेरी गाड़ी में एक और डिवाइस है ओडोमीटर, और वो क्या करता है? डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस। अब पता नहीं कितनी बार मैं अपने घर से ऑफिस गया होऊंगा, ऑफिस से वापस आया होऊंगा, चंडीगढ़ गया होऊंगा, वहां से वापस आया होऊंगा, दिल्ली गया होऊंगा, वहां से वापस आया होऊंगा, लेकिन मेरी गाड़ी को पता ही नहीं चला। उसने जाते हुए भी किलोमीटर्स ऐड करे
वापस आते हुए भी किलोमीटर ऐड करे। एक साल में मैंने गाड़ी चले 18,000 किलोमीटर, तो वो तो सीधा ऐड कर दिया, डायरेक्शन तो देखा ही नहीं। नहीं तो मैं क्या बोलता कि भाई आगे गया पॉजिटिव, पीछे आया नेगेटिव, पर मेरी डिवाइस को तो पता ही नहीं चला, बिकॉज इट वाज मेजरिंग व्हाट, डिस्टेंस। हेंस इट इज वंस अगेन व्हाट, स्केलर। जैसे बड़े सारे एग्जांपल है, बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि वी आई टोल्ड यू अबाउट स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, टाइम, और भी है, सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी है, लाइक वर्क, लाइक एनर्जी, लाइक पावर एंड मेनी मोर। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सच क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन पढ़ना ही नहीं है। पर कुछ टर्म्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर डायरेक्शन एसेंशियल है। जैसे ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में मुझे एप्पल का वेट मेजर करना है, मास नहीं, वेट। तो कैसे करूं? उसके अंदर कोई डायरेक्शन है? बिल्कुल है। आप इस एक्टिविटी को हॉरिजॉन्टल करके नहीं कर सकते, आपको इसको वर्टिकल करके ही करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते इसको, मतलब स्केल को ऐसे रख दो फिर मेजर करोगे, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं वेट को? दैट इज mg। mg इज व्हाट? द वेट। और mg होती क्या है? जैसे नथिंग बट अ फोर्स। और फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है, जैसे ग्रेविटी कहां लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम सोचते हैं कि डाउन लगती है, बट इट एक्चुअली एक्ट्स वेयर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हेंस इट हैज अ डायरेक्शन, बिना उसके ये काम नहीं होगा। सो द वेट और द फोर्स इज सपोज्ड टू बी व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारी ऐसी टर्म्स जिसके अंदर दोनों चीजें चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ये तो बताओगे कि भाई कितनी वैल्यू का, कितने वेट का एप्पल है, तो बताना पड़ेगा ना। पर आपको इसकी मेजरमेंट में डायरेक्शन भी लगा। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, किसी ऑब्जेक्ट पे, ये आपको ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, कितनी लगाई? 20 न्यूटन लगाई। कहां लगाई? वेयर डिड यू अप्लाई? मतलब कहीं भी अप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। अगर मान लो आपने वो फोर्स 20 न्यूटन सेंटर पे लगा दी, तो ये सीधा सीधा आगे चला गया। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करा और उतनी ही फोर्स इसके ऊपर आप यहां लगा दो, तो ये टिल्ट कर जाएगा, ये टिल्ट कर जाएगा, हो सकता है वो गिर जाए। इसका मतलब किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो बताना जरूरी है, डायरेक्शन बताना जरूरी है। इस तरफ से फोर्स लगा दी तो लेफ्ट को चला जाएगा, तो इसमें डायरेक्शन एसेंशियल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स, जैसे फोर्स, एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम का मतलब होता है जिससे हमें पता चले कि मोशन हो रहा है। मतलब एक बुलेट फायर करी तो बुलेट का मास कम है पर स्पीड ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। एक ट्रक चल रहा है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है पर स्पीड कम है, लेकिन तब भी उसका मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन इन अ पर्टिकुलर पार्टिकल, और डेफिनेटली उसके अंदर डायरेक्शन होता है क्योंकि वो वेलोसिटी से आता है। मोमेंटम में दो किस्म के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब है हम सीधी रास्ते जा रहे हैं, सीधे सीधे लीनियर जा रहे हैं, सीधे रास्ते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। एक आपके घर में पंखा है, सो पंखा कहीं जाता नहीं है, आगे नहीं निकल जाता, वही होता है, पर वो क्या करता है? रोटेट करता है, रोटेशन होती है। अब वो जो रोटेशन है, इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू ड्राइवर है, उसे स्क्रू को या तो ओपन करोगे या तो बंद करोगे, सो इट बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इन सारी टर्म्स में क्या है? डायरेक्शंस होते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्म्स, इसका मतलब इक्वल वेटेज है। स्केलर्स भी बहुत सारे हैं, वेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। वैसा नहीं कि जैसे हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है सिर्फ 7 होती है, बाकी सारी डिराइव्ड होती है, यहां ऐसा नहीं है। यहां स्केलर्स भी बहुत सारी टर्म्स है और वेक्टर्स भी बहुत सारी टर्म है। इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चैप्टर का नाम वेक्टर्स होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको कैसे? वेक्टर्स प्लस स्केलर्स। So please note this down, and once you are through with this, let me know so that I can move forward.
Scalars only having value, no direction senses, and a vector which is having magnitude as well as a direction. दोनों बताने जरूरी है. Vectors में एक और part है, मतलब हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी. Very soon you are going to learn that also. पर सिर्फ इतना होना काफी नहीं हो पाएगा. मतलब ओपनिंग में तो ये डेफिनेशन फील सही हो रही है कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और उससे वेक्टर बन गया. हाँ ठीक है अभी तक. But there is a catch in it. There is a something hidden in it. उस बात को भी अभी हम समझेंगे. एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. I am going to make us learn through some question. So if you have noted this down, please tell me. Right. So let me move forward then. Let me move forward. Okay. So I have a plainful question in front of me, and the plainful question in front of me is that I am having 3 masses over here. और मुझे उनको weigh करना, मुझे उनको add करना. And what is the total mass of the object? So the first one is supposed to be of the 20 kg, and I place it over here. That's a 20 kg mass over here. मैंने इसको place कर दिया. So that is a 20 kg mass. The next set is supposed to be the 5 kg mass. So मैंने इस 5 kg mass को फिर यहाँ पे place कर दिया. So it becomes 20 plus 5 kg. And then there is supposed to be the 2.5 kg mass. इसको भी मैंने यहाँ पे place कर दिया. So plus 2.5 kg. And then I added this. So as I added this, so what is the value for the net mass over there as I add this? Can you please answer me? What is the value for the net mass? Can you please answer? Yes, please answer. Please answer. 27.5. 27.5 kg. That was pretty simple, ना? हमने तीनों को just add किया 20 plus 5 plus 2.5 and answer comes at 27.5 kg. Absolutely correct. मतलब इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगा, मेरी हेल्प भी नहीं लगी. अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं 5 kg पहले रख देता, 20 बाद में रखता, 2.5 बाद में रखता, उससे कोई फर्क पड़ता आंसर पे? नहीं. एक के ऊपर एक रख के मैं नाप लेता, उससे कोई फर्क पड़ता? नहीं. Which means that this is simple, जो कि आपको पहले से आता है. इस तरीके की एडिशन को हम बोलते हैं स्केलर एडिशन. इट्स अ स्केलर एडिशन, मतलब जो पहले से आता है. 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, सबको आता है. नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है. नया आने वाला है, अभी नया आने वाला है. समथिंग इज गोइंग टू टर्न अप. ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, आई एक्सपेक्ट कि आप उसका आंसर दे पाए. सो दिस इज अ क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू गिव मी द आंसर. Please try to give the answer. It's very simple. 23 degrees Celsius. 3 degrees. 23 degrees Celsius. How I was able to get rise in temperature? That's the final temperature minus the initial. So final temperature is 55 degrees Celsius minus initial is 32 degrees Celsius, and the difference is 23 degrees Celsius. So that's pretty simple. और इसके लिए भी आपको मेरी मदद चाहिए ही नहीं. And what is this? Minus subtraction. That's known as scalar subtraction. So pretty easy. It's very easy. आप screenshots ले सकते हो, right? Screenshot ले सकते हो, मतलब अगर आप पूरा slow लिखते हो, so later on you can actually take the help of those screenshots and write down and complete your notes, right? So it's a very simple thing. तो मतलब add करना, subtract करना हमें आता है. और अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात हो रही है, क्यों? ये टेम्परेचर की बात है. इससे पहले जब हमने क्वेश्चन करा, सो इट वाज अबाउट द मास. सो मास एंड टेम्परेचर बोथ आर व्हाट? स्केलर्स. तो इसको ऐड करना अपने को आता है. मुश्किल कहां आनी है, नयापन कहां आना है, एंड दैट इज वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्शन बताते हैं. और जिंदगी में, लाइफ में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट वी आर बोर्न, वी आर एक्चुअली गिवन अ डायरेक्शन कि भाई आप पैदा हो गए, आप 6 महीने के बाद चलना शुरू कर देंगे, वैक्सीनेशन होंगे, उसके बाद आपकी, उसके बाद आप एलकेजी जाएंगे, पहले प्ले स्कूल जाएंगे, फिर एलकेजी जाएंगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल जाएंगे, 10th तक पहुंचेंगे, फिर सीनियर बन जाएंगे, 11th 12th, फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर पता नहीं जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, लाइफ आगे बढ़ाएंगे. सो देयर इज अ सेट डायरेक्शन. आपकी फैमिली डॉक्टर्स की है तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स के तो इंजीनियर बनेंगे, सीएस की है तो आप कॉमर्स करेंगे. इट्स अ सेट डायरेक्शन.
और अगर हम मैक्सिमम लोग अगर डायरेक्शन से इधर उधर होते हैं, ओह, सो वी गेट अ बीटिंग। तो व्हिच मींस दैट द डायरेक्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, तो हमें पढ़ाई नहीं की 10th तक, तब 11th में एसेंशियल हो जाती है पढ़ाना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के आगे 3 डब्बे हैं। 2 डब्बे तो हम फिल कर सकते हैं कि वेक्टर कैसे बनता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, चलो ये तो सही है। सो व्हाट अबाउट दिस थर्ड, ये क्या फिल करें, ये तो 2 ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तब भी वो वेक्टर ना हो। तो ऐसा क्या है, देखो अगर हम स्केलर एडिशन भी करते हैं तो भी, मतलब स्केलर अलजेब्रा लगाते हैं, तो हमारे पास लॉ होता है, बॉडमास, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉ है। उसी तरीके से वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए भी लॉज है। उन लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो आपको सीखना है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को ओबे करती है, तब जाके उसको वेक्टर बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। व्हिच मींस इट मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सर वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा अभी। I'm going to teach you that, and that's the whole chapter to learn about vector algebra. स्केलर आता है आपको, उसके 2 एग्जांपल भी आपको दिखा दिए कि आपको आता है, कंफर्टेबल कर दिया, ये मैंने सिखाना है। So that's the essentials for being a vector. So a vector quantity must have a magnitude, must have a direction, and must obey the laws of vector algebra, and hence it is assigned as a vector quantity. देखो अगर हमने लिखा v और लिखा ये, अब दोनों में क्या फर्क है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो अंडरस्टूड है कि कौन सा स्केलर होगा ये और कौन सा वेक्टर होगा ये। तो जिसके ऊपर एरो लगाई जाती है उसको वेक्टर से डिनोट करा जाता है। सर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे क्या, स्पीड, और इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो लिखने से ही फर्क पड़ गया कि स्पीड क्या है, स्केलर है, तो उसके ऊपर कोई एरो नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये क्या है, वेक्टर है, तो उसके ऊपर एरो मार्क। जैसे अगर हमने लिखा s और s के ऊपर ये वेक्टर, तो फर्क पता चल गया कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये सिंपल सूखा, इसके ऊपर एरो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट इन द राइटिंग, क्या स्केलर है क्या वेक्टर है। इसको भी बहुत डिटेल में आगे देखेंगे अभी, राइट। सो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया, यू नोटेड दिस पर्टिकुलर थिंग डाउन। तो अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को समझने के लिए मेरे पास एक क्रॉस क्वेश्चन, आई हैव अ क्रॉस क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्रॉस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज करंट स्केलर और वेक्टर? सो कैन यू प्लीज गिव योर व्यूज कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है, पढ़ा हुआ है आपने 10th में। सो इज अ करंट स्केलर और वेक्टर? प्लीज आंसर, ट्राई टू आंसर, इज इट अ स्केलर और वेक्टर? Vector Yes. quantity. It's a vector quantity. Reason because it should be having a direction. It is having a direction. According to us, it is having a direction. Sir, it's a scalar quantity because Why? we use simple mathematical rules to add or subtract it. Oh, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. She is telling actually the correct things. मतलब क्या? मतलब समझते हैं. ये देखो, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर. So 3 + 4 कितना होता है सर? 7 होता है. तो फिर ये एरो वैरो बना के क्या हुआ? 3 + 4 = 7 तो पहले ही पता होता है. अच्छा ये कितना है? 7 है. तो इसमें गया 3, इसमें गया 4, तो 3 + 4 फिर से 7 हो गया. अब यहाँ पे ये एंगल 90 बना हुआ है, यहाँ पर ये एंगल मान लो 60 डिग्री, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो सर एंगल का क्या पंगा है? एंगल की बात आपको समझाता हूँ. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग. आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ. सो दिस इज अ ब्लॉक and I applied a force on it, a 6 Newton force, and then I applied a 4 Newton force. What is the net force on it? Can you answer? What is the net force on it? Can you answer please? What is the net force on it? Net force, net force, net force, net force on it. Come on, what's the net force on it?
I have applied 6 Newton force, I have applied 4 Newton force. What's the net force on it? No answer. Sir, I'm not sure, but maybe it's 10 Newton. It's 10. Yes. Okay. Let me give another example. So I have another example in which I have 6 Newton force here, and I have a 4 Newton force here. So can you answer what is the net force now? What's the net force now? Okay. 2 Newton मतलब माइनस करके आएगा, मतलब 6 इधर 4 इधर, 6 इधर था 4 इधर था, तो दोनों को क्या करा, माइनस करा। अच्छा, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे हमें ये कैसे पता चला कि सेम डायरेक्शन में? एरोस से। किससे पता चला? एरोस से। तो हमने सिंपल इसको ऐड कर दिया, 10 हो गया। पर ये क्या है, एरोस ऑपोजिट है, तो हमने क्या करा, माइनस करा। मतलब कोई इसको इधर से खींच रहा था 6 से, कोई इधर से खींच रहा था 4 से, तो क्या होगा, वो उस तरफ जाएगा, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा है। कितने से? 2 न्यूटन से। let me sketch another one. So another one like this, कि मैंने क्या करा, यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स इधर लगा दी, और जो 4 न्यूटन फोर्स है वो इधर लगा दी। अब पूछा, अब नेट फोर्स कितनी है? तो फिर से बोलेंगे सर 6 - 4 2, तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? तो हम बोलेंगे 6 - 4 2, so that's 2 न्यूटन towards the right. कहां लग रही है? towards the right. Net force is acting towards the right. और इसमें डेफिनेटली इधर मूव करेगा क्योंकि ये ज्यादा है, so that's again 6 - 4 2 न्यूटन, but that is towards the left. तो हम क्या लिखने लगे? We are writing the direction along with the value. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 10 न्यूटन towards the right. So हमारी जिंदगी में कुछ नया आ गया। And what is that new? That new thing is supposed to be what? The arrows. Arrows आ गई हैं। तो ये जो arrows होती हैं, they actually bring in the life. They bring in the direction senses. और तभी हम एक वेक्टर को समझ पाते हैं। अब देखो, अगर ये 6 न्यूटन फोर्स है, अगर ये 6 न्यूटन फोर्स है और ये जो 4 न्यूटन फोर्स है ऐसे लगा, अब इनके बीच का एंगल 90 कर दिया, अब इनके बीच का एंगल 90 कर दिया, तो यहाँ पे एंगल कितना था? यहाँ पे एंगल कितना था? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल कितना है? 0। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल चेंज हुआ, आंसर बदल गया। एंगल चेंज हुआ, आंसर बदल गया। यहाँ एंगल कितना है? 90। सो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कितना आएगा वो भी सीखेंगे। But we are very sure that the answers are changing. हर एक का आंसर 10 नहीं आ रहा, स्केलर में हर एक का आंसर 10 आता है, 6 + 4 10 ओवर। पर यहाँ ऐसा नहीं है। With the respective directions, with the respective arrows, the answers are changing. And this idea starts as a vector addition. पर अपने करंट में ऐसा नहीं हो रहा। करंट में ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां से ये करंट आया कितना? 3 एम्पियर, यहां से कितना आया? 4 एम्पियर। हमने इस एंगल को देखा ही नहीं। कोई भी एंगल हो, 30 60 90, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 7 आएगा। मतलब इसमें डायरेक्शंस का फर्क ही नहीं पड़ा। सो हाउ डू वी राइट द आंसर? वी राइट करंट इज a scalar quantity. Please write along. Current is a scalar quantity since it does not obey the laws of vector algebra. तो सर वेक्टर अलजेब्रा के लॉस किस तरीके से काम करते हैं? डायरेक्शन में, और वो एंगल पे डिपेंडेंट होते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। पर ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कितना भी एंगल होगा, आंसर सेम आएगा। एंड देयरफॉर करंट इज व्हाट? अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा सिर्फ अकेला करंट नहीं है, और भी एग्जांपल्स हैं। देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ सच क्वांटिटीज। जैसे इसका एग्जांपल एक और टाइम होगा। कहने को टाइम के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन हम सीधा ऐड कर लेते, 2 घंटे + 4 घंटे, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे पढ़ाई कर ली हमने, तो इसका मतलब हम उसके लिए डायरेक्शन देख रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन एडिशन स्केलर कर रहे हैं। ऐसी और क्वांटिटी है, प्रेशर। ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई, ये सारी की सारी हम स्केलर मानते हैं, जबकि उसमें डायरेक्शन होता है। प्रेशर कैसे लगाते हैं? और परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं।
परपेंडिकुलर फोर्स लगा के। लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एक लॉ होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बहुत सारी गैसेस अगर आप एक कंटेनर में डालो तो हर एक गैस कंटेनर में प्रेशर लगाती है। तो डाल्टन कहते हैं कि अगर आपको नेट प्रेशर निकालना है तो हर एक गैस जितना प्रेशर लगा रही है सबको सिंपली ऐड कर दो। तो वैसे तो प्रेशर का डायरेक्शन था, लेकिन आपने उसको ऐड कैसे करा? सिंपल स्केलर, एंड हेंस इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, and therefore it is termed as what? A scalar quantity. So with this we have entered into the article of the vectors. तो vectors को लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए. So let us give some notations to the vector. कि vector को हम कैसे denote करते हैं, उसके terms कैसे use करते हैं. So I'm walking towards the next. With this example, पहले example देखते हैं. तो ये जो example है, इसमें मुझसे पूछा गया है, what's the question for me? The question is very simple for me. The question is, what is the resultant force? चलो resultant आपके लिए नई लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ what is the net force? तो मैं net force निकालनी मेरे हिसाब से आसान होगी. So what is the net force in this? What is the net force? Can you please answer the net force in this? Very simple. Net force in this. Look at the diagram and you will be easily able to answer. Net force. ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट. सो व्हाट इज द नेट फोर्स? कहां लग रही है? राइट को, लेफ्ट को, ऊपर, नीचे? यस आंसर प्लीज. कितना आंसर है? 10 Newton 10 न्यूटन. वेयर? towards the right. That's right. 10 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट. कैसे आया? बड़ा सिंपल था. ये 38 ऊपर और ये 38 नीचे कैंसिल हो गया, और ये 50 राइट को 40 लेफ्ट को, तो माइनस हो गया, तो 10 न्यूटन आ गया. एंड आंसर इज सपोज टू बी 10 न्यूटन. कहां? तो मैंने कहा नया तरीका सीखते हैं डायरेक्शन लिखने का. वो नया तरीका क्या है? न्यूज. न्यूज मतलब दैट इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ. सो न्यूज ले आए हैं, राइट? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. सो अब मैं आंसर को कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट द आंसर 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट. डायरेक्शन लिखने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोले. मतलब इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, इसको टुवर्ड्स द राइट भी बोल सकते हैं, और इसको ईस्ट भी बोल सकते हो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट आंसर जो आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रही है. लेकिन हमने ऐसा नहीं करा कि 38, 38, 40, 50 इसको ऐड कर दिया सीधे सीधे, ऐसा बिल्कुल नहीं करा. हमने कोई स्केलर एडिशन नहीं की, हमने डायरेक्शन देखी है. तो डायरेक्शन देख के जब आप ऐड करते हो उसके आंसर को रिजल्टेंट बोलते हैं. तो रिजल्टेंट इज द एडिशन रिजल्ट ऑफ वेक्टर. स्केलर को ऐड करने के रिजल्ट को कुछ नहीं बोलते. इफ यू ऐड द वेक्टर्स एंड व्हाटएवर वी गेट एज एन आंसर, उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट. एक एग्जांपल और देखते हैं इसका. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर इट. This is a tug of war, right? It's a tug of war, and this tug of war, one of the team is winning. So which team is winning? Team A or Team B? Which team is winning? A or B? And by what amount? Team A. By what amount? 50 50 Newton. 50 Newton. So the net force. But the question asks me, what is the resultant force? So what is the resultant force? So I'm going to answer the question as 50 Newton. Where? So I'm going to answer 50 Newton towards negative x-axis. क्योंकि क्वेश्चन ने वो बोला है, क्वेश्चन ने शो करा कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव x है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव x हो गया. So the answer is 50 Newton towards a negative x. So the point is कि डायरेक्शन हम उस तरीके से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन हमें डिमांड करता है. हाउ इट इज डिमांडिंग? तो कई बार वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की तरह डिमांड करेगा, कई बार वो प्लस एक्स और माइनस एक्स की तरह डिमांड करेगा, कई बार वो राइट लेफ्ट अप डाउन इस तरीके से डिमांड करेगा. बट इट इज गोइंग टू बी सिंपल, इट्स गोइंग टू बी गुड लर्निंग. और सब में एक कॉमन फीचर है, एरोस. क्या आ रही है? एरोस आ रही है. एरोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड and look at this question. A very good question, very nice question. Question क्या है? Identify speeding up or slowing down. किस कंडीशन में गाड़ी स्पीड अप कर रही है, किसमें स्लो डाउन कर रही है. तो हमने इसको देखा, we observe this. तो अब इसके अंदर
दो वेक्टर्स बने हुए हैं। एरो का मतलब क्या है, वेक्टर्स है। तो उनमें से एक क्या है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या समझाता है, वेलोसिटी वेक्टर हमें समझाता है द मोशन, कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो डेफिनेटली गाड़ी राइट को जा रही है, इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। एक्सेलरेशन हमें क्या समझाता है कि कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो भी टुवर्ड्स द राइट लग रही है। मान लो इस बंदे ने फोर्स लगा दी तो गाड़ी उधर ही जा रही थी और फोर्स भी उधर ही लग गई, तो डेफिनेट सी बात है कि गाड़ी की स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस वाले केस में जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, स्पीडिंग अप। क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं that the velocity and the acceleration are in the same direction. So the v, that's the velocity, and the acceleration are in the same direction. दोनों same direction में। सेकेंड वाले केस को देखा हम, सेकेंड वाले केस को, तो सेकेंड वाले केस में जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है, दिख भी रहा है गाड़ी का, और फेस ही उधर है। इसका मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है। सो दैट्स द मोशन, दैट्स द मोशन डायरेक्शन। लेकिन जो एक्सेलरेशन आ रही है, अरे उसका जो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है। इसका मतलब कोई बंदा होगा जिसने फोर्स जो है वो ऐसे लगा दी, मोशन के विरुद्ध लगा दी, मोशन के ऑपोजिट लगा दी, तो क्या होगा नतीजा, दैट द व्हीकल इज गोइंग टू स्लो डाउन। सो दिस आइडिया इज फॉर स्लोइंग डाउन। तो कैसे डिकोड करें, सो विजन से, विजुअल से, ये दोनों एरोस ऑपोजिट हैं। मतलब इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब ये तरीका बड़ा सिंपल हो गया और उसके बेसिस में नेक्स्ट तो डिकोड हो जाएंगे। तो इस वाले केस में सर वी एन ए ऑपोजिट है, तो मुझे अब कुछ नहीं बनाना, मेरे लिए इंफॉर्मेशन काफी है कि वी एन ए ऑपोजिट है, सो इट इज गोइंग टू स्लो डाउन, इट इज स्लोइंग डाउन बिकॉज द रीजन इज वेरी वेल मेंशन्ड कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, ऑपोजिट है। और ये सो देख के बताया है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो हेंस इट इज गोइंग टू बी स्पीडिंग अप। तो देखा डायरेक्शन से, एरो से क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। एंड वन मोर थिंग, अगर हम बोल रहे हैं कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है, गाड़ी स्लो डाउन होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर इज अ रिटार्डेशन। क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। तो रिटार्डेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, स्लो डाउन होना। हम क्या बोलते हैं, माइनस ए लगेगा, माइनस ए लगेगा ना, तब अपने को समझ में आएगी कि रिटार्डेशन होती है। रिटार्डेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, दैट इज स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल। जब भी गाड़ी स्लो हो रही है मतलब आपने ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि आपने मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगाई। एंड दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ट्रू मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन का ट्रू मीनिंग होता है स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप। सो वी आर स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप कैसे करते हैं, जब हम गाड़ी चला रहे हैं और एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। तो एक्सेलरेटर दबाने का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करी, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, एंड देयरफॉर अ व्हीकल इज गोइंग टू स्पीड अप, दैट्स गोइंग टू स्पीड अप। सो दैट्स योर आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या था, आपको डायरेक्शन समझानी है, कैसे, एरोस से। सो एरोस आर समथिंग व्हिच मेक्स आवर लाइफ सो मच बेटर। आप कहीं ना रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और आपके पास कुछ साइंस है, साइंस है कैसे दिखाता हूं मैं, साइंस दिखाता हूं आपको। कुछ ना साइंस है हमारे पास, एक ये बोर्ड है, एक ये बोर्ड है, ठीक है, और एक ये साइन बोर्ड है। अब देखो इस बोर्ड पे क्या लिखा है, दिल्ली, ये लिखा है, ठीक है, इस पे लिखा है दिल्ली, कितना 320 किलोमीटर यहां से लुधियाने से दिल्ली का डिस्टेंस। ओके, ये इस पे लिखा है दिल्ली एंड लाइक दिस। ओके, एंड द थर्ड बोर्ड इज देयर which says Delhi and this is 320 kilometer and like this. Which is the board you will like the most, which is the most informative board, this one or this one, which is most informative? हम सब एग्री करेंगे कि सर ये वाला क्यों, because it's a vector board. Why it is a vector board? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको वैल्यू भी पता चल रही है और साथ में डायरेक्शन भी पता चल रहा है। So that's what the arrows make the things better. अब ये इस पे एरो लगी नहीं है तो ये उल्टा सीधा लगा दिया किसी ने, तो हमें पता ही नहीं कि कहां जा रहे हैं, है ना। So arrows make so much of a difference in our life. So now I am going to be discussing the last part of the today's session. आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट।
और ये है इनका रिजल्टेंट निकालना। क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो इसको सीखते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट फॉर टुडे। सो लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड दिस। तो उसके लिए मैं एक सिंपल केस ले रहा हूं और इसको सॉल्व करूंगा। सो आई हैव दिस एज लेट्स से 5 Newton forces, like 5 Newton, and I have another 5 Newton force. Another 5 Newton force, let's say, applied like this. This is also 5 Newton force, which का angle कितना है 90. अब मुझे क्वेश्चन ने बोला find the resultant force, इसका रिजल्ट निकालो, वेक्टर ऐड करें। What am I gonna do? आप इसको देखना ध्यान से जो मैं करने वाला हूं। What I am doing is I am completing this rectangle, जिसकी दो साइड्स पे ये वेक्टर, I am completing this rectangle, right? So I have completed what? A rectangle. अब मैंने क्या करा कि जो इसका कॉमन पॉइंट है, it is a common point here, this one, इस कॉमन पॉइंट से रेक्टेंगल के डायगोनल बना लो। So I am creating a diagonal over here. That's a diagonal of this particular rectangle. I have created that. And this is going to give me the result. अब मतलब ये जो आएगा इसी को मैं क्या बोलूंगा? Resultant. That is a net force. And this idea is known as the law of rectangles. अब इसकी वैल्यू निकालूं कैसे? सर वो तो सिंपल है। कैसे? देखते हैं how it is simple. तो ये 5 न्यूटन है। This is 5 न्यूटन, right? And see, ये साइड इसके बराबर है। We know that रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर होती है। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये भी बना सकता हूं। So this is how much? This is 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन। इसकी जगह मैंने ये बना लिया। And so this resultant is this side. अच्छा सर ये कैसे आएगी? ये तो पाइथागोरस से आ जाएगी। This can be easily calculated by the Pythagoras. So Pythagoras से ये वैल्यू कितनी आ गई? That is root 5 square plus 5 square. That is 25 plus 25, 50. Root 50 becomes 5 root 2. So 5 root 2 Newton is the answer. That's the answer. So the answer is supposed to be 5 root 2 Newton. लेकिन ये अधूरा आंसर है, हाफ आंसर है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है और इस वेक्टर का भी डायरेक्शन है। So where is the direction? For that we can introduce this angle. We can introduce this particular angle. अब ये एंगल कैसे आएगा? That angle is calculated as tan theta. What is tan theta? Perpendicular upon base. So what is a perpendicular? That is 5. What is a base? That is 5. So what is 5 upon 5? 1. So tan theta is coming as 1. So therefore, what is theta? So theta is equal to 45 degrees. How much? That is 45 degrees. So how do I write the answer? So I'm going to write the answer. Let's say this is north. Let's say this is this is east, right? This is east. This is east. So this is east and this is north. So what is this direction? ये एंगल कितना आया? 45 डिग्री। अगर तो फोर्स इधर होती तो ईस्ट बोलते, अगर फोर्स इधर होती तो नॉर्थ बोलते, पर नेट फोर्स तो इधर आ रही है एंड इक्वल एंगल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। सो व्हाट इज आंसर नाउ? दैट इज 5 रूट 2 न्यूटन। कहां पे? अलोंग द नॉर्थ ईस्ट, एंड दैट्स माय आंसर। क्या क्या लिखा मैंने आंसर में? वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन, एंड दैट कंप्लीट्स a vector physical quantity. A physical quantity must have a unit, must have a value, और अगर वो वेक्टर है तो उसका भाई डायरेक्शन भी होना चाहिए और वो वेक्टर लॉस को भी ओबे करने चाहिए। तो उनका पहला लॉ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स अ लॉ ऑफ रेक्टेंगल, कि इसके अंदर जो आपका डायगोनल है किसका? रेक्टेंगल का, दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्टेंट। और ये कब एप्लीकेबल है? जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है। जैसे 0 डिग्री था तो सीधा ऐड कर लिया हमने, सीधा कर लिया, मतलब 5 + 5 10 हो जाता। अगर हम इसको सीधा ऐसे लगा देते कि 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो तब तो इनके बीच का एंगल कितना था? 0 था। तो तब इनका आंसर कितना आ जाता है? 10 न्यूटन टुवर्ड्स, इस डायग्राम के हिसाब से दैट वुड हैव बीन ईस्ट, है ना। और अगर ऐसा हो जाता
कि 5 न्यूटन इधर लगा दिया और 5 न्यूटन इधर लगा दिया, तो ये तो ऑपोजिट हो गया और थीटा 180 हो जाता, तो फिर आपकी नेट फोर्स कितनी आ जाती, 0 आ जाती। तो उसका डायरेक्शन तो होता ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्शन क्या लेंगे। So it makes us understand that every time the angle changes between the vectors, the answer changes. The answer changes. 10 आया, 0 आया, और अब कितना आया, 5√2 आया। तो अगर 60 डिग्री एंगल होगा तो भी आंसर बदल जाएगा, है ना। अगर इनके बीच में 60 डिग्री एंगल आ जाएगा तो आंसर बदल जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। It is going to change and we are going to learn about them in the upcoming sessions. तो ये हमारा आज का सेशन था, where we introduced to ourselves the physical quantities, the fundamental and the derived. Then we talked about the 7 fundamental quantities. फिर हमने differentiate करा वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच में, उनके एग्जांपल्स देखे, वेक्टर और स्केलर को लिखते कैसे वो देखा, what is the essentials for defining a vector, उसकी 3 कंडीशन देखी, the most important, the obeyance of the laws of vector algebra. And then we saw how the directions make us interpret the questions. And finally, we ended our lecture करने वाले हैं, that is about the law of rectangles. So that's all for the today's session. We'll be coming again and discussing about the next laws. पहले तो हम law of rectangle के और example देखेंगे. And there are numerous laws. There are numerous laws like a triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law, ये सब पढ़ेंगे. They are part of the vector algebra. So upcoming sessions में we'll be delivering more in the sense of direction. Scalars हमें आते हैं, scalar addition आती है, scalar multiplication भी आती है, vector addition अभी सीखनी है, शुरुआत हो चुकी है, arrows हमारे जीवन में आ चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन है। जैसे ये वाला जो लॉ है, ये सिर्फ तब लगेगा जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है, और आप पूछोगे ना सर 60 डिग्री होगा तो फिर कैसे निकलेगा, तो मुझे और लॉस बताने पड़ेंगे। फर्दर अभी मैं सिर्फ 2 वेक्टर्स देख रहा हूं, तो फ्यूचर में 3 वेक्टर्स आएंगे, 4 वेक्टर्स आएंगे, तो फिर कैसे ऐड करेंगे, तो उसका भी हल है, which will be there in the upcoming sessions. So right now I'm going to wind up this session.